Good afternoon, everyone. Sayam, where are you? I am here. Okay. Yeah, we'll start in about the next 3 minutes at 3:15 sharp. All our participants, most of them have joined of GJ also, so welcome to everybody. We'll start at 3:15 sharp within the next 3 minutes. Next 3 minutes में हम लोग start करेंगे. Welcome, I can see Bhavik Bhai, Vivek Kabra ji, Chintan Rathod ji, Hasmukh Parikh ji, Bablu ji, everybody is here. Great. Raining heavily in Mumbai. Shivram ji, Gurjeet ji, welcome. Kana. Raining very heavily in Mumbai? Very heavily. Okay. Where I'm sitting while we talk also, there will be a sound of rain in the middle. Okay. So we'll start in the next 1 minute. I think Ashok Bhai has lost the connection. Ashok Bhai has lost the connection, no problem. Great, Mitesh. Done. Hello, Ashok Meghani ji. Welcome, Chetan Bhai. Welcome. किसी को unmute करना है तो मेरे को बोल देना. Right. I think we'll do it in Actually, everyone has to stay muted. Yeah. We'll let I've already muted everybody, Ashok Bhai. Okay. Yes. Music or look at your video. Okay. एक वगाड़ी दियो तूने. I think, Babu sir, we can start. Okay. Yeah. So, Jai Shri Ram and good evening to all our friends from Gem & Jewelry industry. We are gathering here today to witness GJC taking a leap ahead once again in the formation of a new virtual show to be launched today, called the GJS Virtual. Today, we witnessed another epic Muhurat of the Ram Janmabhoomi temple, and this is a very auspicious day, and that's why we have done it. So we expect a lot of people to go ahead and confirm in the chat itself. Our nation has been fighting COVID pandemic since March 2020. While markets are opening in many states, our industry has been severely impacted due to the pandemic. The most impacted ones were our karigars, artisans who were literally stranded and trapped because of the lockdown. With very minimum financial backup, our karigars were badly affected, and GJC, your domestic council, intervened, and with the support from our valued members and jewelers, we generated funds 1 crore 11 lakhs as donations. In donated rupees 1,500 directly to the bank accounts of more than 7,000 karigars. We also represented our key concerns to the ministry and asked for certain relief for our industry, and your
And as you all know, one of the points in our representation are accepted by the BIS, and the mandatory hallmarking deadline has been switched to June 2021. GJC is constantly in touch with the ministry to avail for more relief for our industry. Friends, while GJC was fighting for the benefit of our industry, we also faced a tragic incident of the demise of our beloved Vice Chairman, Shri Shankarji, on 28th July 2020. His legacy will continue, and our entire industry will join hands to fulfill his dream of a united industry with one voice. Today, our community is in a dire situation because of manufacturer or wholesaler who himself or his team travels city to city, takes part in various exhibitions and shows, is now succumbed to social distancing norms and travel restrictions. So how does he do business now? When Unlock 3.0 is also announced, how could a manufacturer or a wholesaler continue doing business with his retailers? Today, a lot of others have ventured and conducting virtual or digital shows, but how effective are we using it? How user-friendly experience they are giving? GJC over the past few months have explored a lot of options and did rigorous brainstorming and meetings to finally come up with a platform that has potential as the biggest game changer of the industry. I would like to invite our co-convener, Sayam, to take over from me after I go through the flow of events. Thank you, Babu sir. As you rightly said, we really miss our convener and our vice chairman, Shri Shankar Senji, who has given us all the vision to grow ahead and always has been with us from the start of this event and showing us the way how to go ahead. So thank you, Babu sir. Thank you on behalf of GJS committee. Welcome everybody to the grand launch of GJS Virtual. जैसे आप लोगों को पता है, due to COVID pandemic, we are unable to schedule GJS 2020 show, and we have announced the revised dates of 24th June to 28th June 2021 at NESCO. हमारी इंडस्ट्री अब उस पोजीशन में है जहां ऑफिसेज और दुकानों तो खुल गई हैं, मगर काम नहीं हो रहा है. काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी रीच है, फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अभी उस लोगों को तक और अपने रिटेलर तक नहीं पहुंच पा रहा है. पिछले 3 महीनों से जीजेसी कमिटी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही है, एक बारीकियों के ऊपर काम कर रही है. स्कोप, रिक्वायरमेंट, स्टडीज, हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट, सबके ऊपर काम चल रहा है. दोस्तों, ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने काफी सारे सेमिनार्स किए हैं, अटेंड किए हैं, और ऑलमोस्ट सब सेमिनार्स में एक बड़ी लर्निंग ये थी कि एक टाइम चेंज हो रहा है और हमारी अप्रोच भी चेंज होनी चाहिए. ये टाइम ऐसा आ गया है जब भी हमें अपनी नई चीजें, नए इनोवेशंस, नई स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी, जिससे बिजनेस को हमको ग्रो करना होगा. यही आज के तारीख में एक नया नॉर्मल है. दिस इज द न्यू नॉर्मल. अब बिजनेस जो है नए तरीकों से होगा, नए सोच से होगा. ये जो प्लेटफॉर्म है जीजेएस का, जीजेसी का, दिस इज द ट्रू गेम चेंजर ऑफ द इंडस्ट्री, एंड वी आर कॉन्फिडेंट that today it has a potential that it will change the way the industry does business in the future. I at Unique Chains myself participates every month in 1 to 2 shows, and जब भी ये शो लेकर हमारी कमिटी सामने बैठी, तब मैंने कमिटी से पूछा कि क्या ये एक्चुअल पॉसिबल है. टच, फील, जो हमारे कस्टमर को हम सामने बैठा के चाय पिलाकर माल दिखा सकते हैं और दिखाने के साथ उसको अपना पर्सनल इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्या वो सब चीजें ऐसे इस चीज के अंदर पॉसिबल होगी? लेकिन 3 महीने ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ये जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म अभी आया है, जब आके हमारे पास्ट चेयरमैन जो अशोक भाई आपको इसके बारे में आगे बताएंगे, इन्होंने इस चीज ने हम जितने भी कमेटी मेंबर्स है सबका माइंड बदल दिया. और इसमें से 6 से 7 होलसेलर्स हम हैं जो सबने बोला है कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और 4 रिटेलर्स हैं जिन्होंने बोला है कि ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो इंडस्ट्री की सोच और हमारे स्टाफ का टाइम जो उपयोग है वो बदल देगा और हमारे सामने बैठे बैठे काम हो सकता है. जो डेडिकेशन
हमने आज जीजेएस शो के लिए लगाई थी, वही डेडिकेशन आज हमने ये जीजीएस वर्चुअल शो के लिए लगाई है। आपका और हमारा रिश्ता कोई कोविड रोक नहीं सकता। जीजेसी का डाटाबेस जो है आज, वो डाटाबेस आज है 1200 सिटीज और 75,000 रिटेलर्स का, और हम जान लगा देंगे ये 75,000 रिटेलर्स आपको आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे, आज नहीं तो कल आते रहेंगे। मुझे आशा है और उम्मीद है कि आप लोग इसे तहे दिल से सपोर्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्ट लेंगे। हमारे पास चेयरमैन अशोक भाई मीनावाला जी और बाकी पास चेयरमैन जी सबका ये सपना रहा है कि जीजेएस वर्चुअल इज वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट, और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आगे वो अपने आगे प्रेजेंटेशन दें। उससे पहले मैं अपने सारे सीओए जीजेसी के जो हैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो उनका भी वो करता हूं, वो हमारे साथ हम सबको मिलके इसको एक अलग लेवल पे लेकर जाना है। ओवर टू यू अशोक भाई। Thank you very much, Sayam. मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अब तक, उनका तहे दिल से और हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। और इस शानदार दिन को, जब राम जन्मभूमि की शिलारोपण का आज मुहूर्त मोदी जी के जरिए हुआ है, ये दिन जितना हमारे लिए गौरव का दिन है, उतना ही हमारे लिए जीजेएस वर्चुअल के लॉन्च के लिए भी हमारे गौरव का मौका हो रहा है। कुछ बातें हमारे चेयरमैन ने भी समझाई है, कुछ बातें संयम ने भी समझाई है। जो हकीकतें हैं, थोड़ी सी हमारी कमजोरियां हैं, कुछ हमारी सिचुएशन है, और ये सारी बातों को हम बदली कर सके तो तुरंत वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सोचे कोविड-19 के बाद दुनिया को जितना और जिस गति में बदल दिया है, ये बदलाव शायद ही हमारी जिंदगी में हमको कभी देखने का मौका मिलेगा। एक अगर व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो ये एक ऐसा डिसरप्शन है जो हमारे बड़े फायदे या बड़े नुकसान का एक प्रकरण बन सकता है। इस समय कुछ लोग विनर हो सकते हैं, कुछ लूजर हो सकते हैं, और ये आप तय करेंगे इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो या ना हो। बात की जड़ ये है कि इस बदल के समय में आप आपके कस्टमरों को क्या प्रदान करते हो जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं करते हैं, ये इस पर निर्भर होगा। एक छोटी सी कहानी है। दो दोस्त जंगल में जा रहे थे। एक ने रुककर कहा कि मुझे भालू का आवाज सुनाई पड़ रहा है। दूसरे दोस्त ने तुरंत अपने नाइकी के शू निकाले और पहनने लग गया। पहला दोस्त कहता है, क्या कर रहे हो? भालू को दौड़ में हरा नहीं सकते हम? तो वो जवाब देता है, मुझे भालू को नहीं हराना है, मुझे तो तुम्हें हराना है। भूल जाइए भालू को हराना, जीत तो उसी की होगी जो अपने कंपटीशन को अपने और भालू के बीच में रखेगा। और ये बहुत समझने की बात है। बड़ा बदलाव तब आता है जब हमारी उपलब्धियां और हमारी क्षमता दोनों को खतरा होता है। और इसी समय में टेक्नोलॉजीज जो है, नई टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन किया जाता है। जो इंडस्ट्रीजों ने बदलाव को अपना लिया है, वो इस मुश्किल समय में टिक सकते हैं और टिक जाते भी हैं। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो इसका फायदा लेकर बहुत ही अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। एक बात याद रखिए, बदलाव सुनिश्चित है जब सारी सृष्टि, सारा देश
सारे लोग, सारी दुनिया बदल रही है, तो क्या हमारी इंडस्ट्री का इस बदलाव से कैसे बच सकती है? The intermediating changes that occurs when core activities of the industries are threatened is a must. जब बायर और सप्लायर दोनों नई पद्धति का एहसास हो जाता है, तब उनको इसका, और जब उनको इसका स्वाद लग जाता है, तो ये सारी पद्धतियां हमारी संपत्ति और हमारे संबंधों को चैलेंज कर देता है। ये बदलाव इंडस्ट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस समय अगर हमने इसको नहीं समझा और अपने आप को नहीं संभाला, तो हमारे व्यापार को, व्यापारिक संबंधों को ठेस जरूर पहुंचेगी। कंपनीज अब जब मैदान में उतरेगी, तब उनको पता चलेगा कि बदलाव में क्या क्या कर दिखाया। एक ही बात कि हम सबको संभाल के चलना होगा इस दुनिया में। हम नई सोच को अपनाना पड़ेगा। इस बदलाव को अपनी ताकत बनानी होगी, और हमें इन दिनों में अपना काम तभी हम कर सकेंगे। हम सबको अपनी गेम को सुधारनी होगी। अब वही गिल्ली और वही दाव नहीं चलने वाले हैं। Everyone has to go to up their game. The experience in this experience economy, we are going to have to find ways to provide for far more value than we did previously to keep our customers happy. This means better experience for everyone. एक अद्भुत अनुभव का एहसास दिलाना होगा। The buyer of your customers and you as sellers will both have to take care of this. आज सब लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मीडिया की, और कैसे बदलाव डिजिटल मीडिया ले आएगा। बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करके दिखाया। क्या हमको पास्ता खिला के दाल बाटी का मजा नहीं खा रहे हैं, ऐसा मजा थोड़ा हमको आप दे सकते हैं। बदलने के लिए तो सभी तैयार है, लेकिन हमारी मर्यादा, हमारी सुविधा, हमारी कॉस्टिंग, हमारे काम करने के तरीके सभी सही रहेंगे, तब हम बदलने के लिए तैयार होंगे। तो फ्यूचर में क्या आने वाला है और फ्यूचर में क्या हो रहा है? अगर अब हम फिलहाल की बात करते हैं, तो रिटेल करीब सब स्टेट में खुलने लग गया है। होलसेल ऑफिसेज सब खुलने लग गई है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज काफी जगह शुरू हो गई है। अगर सेल्स रिपोर्ट की बात करें, तो रिटेल लेवल के ऊपर 15 से लेके 50% का काम तो शुरू हो गया है। अब नई ज्वेलरी का रिप्लेसमेंट की बात शुरू हो गई है। सब ज्वेलरों ने काफी माल बेच भी चुके हैं, और अब ऑर्डरिंग और नया ज्वेलरी बाइंग शुरू हो चुका है। और अगले 4 महीने हमारे पास ऐसे आने वाले हैं जहां पर बहुत सारे फेस्टिवल है, और दिवाली इस वक्त की जो है ये बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। सोने के बारे में मैं क्या कहूं, सबको अपने को पता ही है, ये सबसे बढ़िया में बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। और एंड कस्टमर के जो माइंड में सोने के लिए जो रिस्पेक्ट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज की जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है, आज की जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, और आज हमको जो कस्टमर को पहुंचने के लिए जो तरीके अपनाने पड़ते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है। आज जो भी पैसा बचता है किसी भी तरह से, अगर व्यापारी का हो या हमारे कस्टमर का हो, वो इन्वेस्ट गोल्ड में होने वाला है। तो क्या आप मानते हैं कि आप हर एक इंडिया के रिटेलर को सही तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे? ट्रैवलिंग तो है, शुरू नहीं होने वाला है तुरंत, काफी महीने बाकी है। हम सबको पता है कि हमारी ज्वेलरी लेके अब हम घूम नहीं सकते हैं। काफी जगह बिजनेस शुरू हो गए,
लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है वो मैन्युफैक्चरर और होलसेल लेवल पे ज्यादा है। क्या वर्चुअल जाना सही है? बहुत कंपनीज ने अपने खुद के वर्चुअल या ऑगमेंटेड रियलिटी के प्लान बनाए हैं, लेकिन कस्टमर को लाना वहां पर बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके पास कस्टमर की स्ट्रेंथ नहीं है लाने की। कस्टमर आ गया तो सही तरीके का एनवायरनमेंट कहो या सही कैमरा कहो या सही प्लेटफॉर्म कहो, उनके पास होता नहीं है। और सही तरीके का एक्चुअल ऑफिस का जो वातावरण है, एक व्यक्ति सामने बैठ के जो माल खरीदता है एक होलसेल के ऑफिस के अंदर, ये अनुभव करवाना एक व्यक्ति को ऑन अ वर्चुअल लेवल, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। आज कस्टमर बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि हम बिल्कुल हमारे हाथ में ज्वेलरी को लेके जिस तरह से देख सकते हैं, वो फील का हमको मजा कैसे वर्चुअल में आएगा? ये आ सकता है, तभी आ सकता है जब किसी ने इस वर्चुअल का परफेक्ट स्टडी किया हो, उसकी सच्चाइयां जानी हो, उसके तरीके समझे हो, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है वो समझा हो, इसमें कितनी जात की टेक्नोलॉजीज एक साथ में मिलती है उसकी डिटेल एनालिसिस की हो। एक ही आंसर है प्रेजेंट सिनेरियो में मेरे हिसाब से, वो है वर्चुअल। और इसके तरीके अगर सेटअप करके ठीक तरीके से किए जाए तो एक बेहतरीन ऑप्शन के रूप में बन सकता है, जो आज तक किसी ने नहीं प्रस्तुत किया है। अगर हम रेगुलर एग्जीबिशंस जो हम साल भर अटेंड करते हैं, पार्ट लेते हैं, उनकी तैयारी, उनके बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा कर ले, उसमें हमारी इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हमको इतना सारा प्लानिंग और प्रिपरेशन करना पड़ता है महीनों पहले। हमको फिर हमारी बुकिंग करनी पड़ती है जगह की, और हमको चाहिए वैसा लोकेशन नहीं मिलता है। हमको ये तय करना पड़ता है हमको 1 बूथ लेना है, 4 बूथ लेने हैं, 8 बूथ लेने हैं। फिर उसकी डिजाइनिंग और उसका बनाने का खर्चा आप सब समझ सकते हैं क्या होता है। और उस एग्जीबिशन जब रेगुलर नहीं होते हैं तो उसके लिए बहुत सारा फंडिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है उस पर्टिकुलर एग्जीबिशन जो कुछ ही दिनों का होता है। पूरी तैयारी अगर आप कह दे इसकी इन्वेंट्री के साथ, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। स्पेशल इंश्योरेंस कवर लगता है इन्वेंट्री के लिए, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन ज्वेलरी का एक बड़ा हिस्सा है, पूरी टीम को ट्रैवल करना पड़ता है और जाना पड़ता है एग्जीबिशन में, खाने पीने का खर्चा लगता है, रहने का खर्चा लगता है, और वहां पहुंचने के बाद सब देखना पड़ता है कि एग्जीबिशन में सही चल रहा है नहीं चल रहा है। और समय जो है, रोज हम 8-10 घंटे से ज्यादा नहीं काम करते हैं, लेकिन एग्जीबिशन के समय में 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। और लास्ट में जब एग्जीबिशन कंप्लीट करके घर आते हैं तो ये भी पता चलता है कि छोटी मोटी ज्वेलरी काफी मिल नहीं रही है, कम हो गई है स्टॉक में से। और दूसरी बात देखें तो ऑफिस जो है हमारी एग्जीबिशन के 15 दिन के करीब में बिल्कुल बंद हो जाती है, इनऑपरेटिव हो जाती है। बाहर का खाना कंपलसरी हमको करना पड़ता है, और हजारों विजिटर जितने निकलते हैं शो में, उसमें से कुछ ही होते हैं जो हकीकत में हम उनको टच कर पाते हैं। जीजेसी की टीम ने काफी इंटेंस स्टडी किया इसके बारे में, और ह्यूज नंबर ऑफ वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स जितने होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर जितने अवेलेबल है, उसका एक एक्चुअल टेस्ट किया, उसका एनालिसिस किया, उसका फिजिकल रिव्यू किया, और ये समझने की कोशिश की कि एक रिटेलर की हकीकत में क्या जरूरत है, एक मैन्युफैक्चरर और एक होलसेलर की हकीकत में बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमने देखा कि बड़ी से बड़ी कंपनी भी अपने काम के सही तरीके नहीं कर सकती। ज्यादातर वर्चुअल एजेंसीज बाजार में किसी न किसी का सॉफ्टवेयर या किसी का प्लेटफॉर्म या एक विशाल बैंक्वेट हॉल दिखा देता है, और उसी जगह पर एक जगह एग्जीबिशंस चल रहे हैं, एक जगह सेमिनार्स चल रहे हैं,
आप जब एंटर करते हो तो वेटिंग लिस्ट में पहुंच जाते हो और वहीं पे आपको खड़ा रखा जाता है घंटों में। या तो प्लेटफॉर्म गलत है, या 25-50 लोग को हैंडल कर सकता है, उसे जगह उसकी ताकत नहीं होती ज्यादा लोगों को हैंडल करने की। ये सारी नाटकबाजी हमने देखी है, और ये नाटक अगर करने की कोशिश कोई करेगा तो ये नहीं चलने वाली है। दिखावे की मिठाई खाने में मजा नहीं आता है। हमने देखा है हर एक प्लेटफॉर्म में, हर एक सॉफ्टवेयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये जो 4 महीने का मौका मिला लोगों को शांति से बैठने का, ये एक बहुत अच्छा समय मिल गया। जीजेएस की टीम इसके पीछे बिल्कुल वर्क कर रही थी, और इसी समय में हमने एक तय किया कि हमारे पास इतना स्टडी करने के बाद हमारे जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहां पर वो सही मायने में अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ऑफर कर रहे हैं जीजेएस वर्चुअल, और ये वही टीम आपको ऑफर कर रही है जिन्होंने जीजेएस का शो प्लान किया था। वही ऑर्गेनाइजेशन है आपको ऑफर कर रही है जीजेसी, जिन्होंने आज तक के जितने सारे बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो किए हैं। ये डोमेस्टिक काउंसिल है हमारे देश की, और ये जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ बहुत करीब से जुड़ी हुई है। पार्टिसिपेंट्स will be the India's topmost manufacturers and wholesalers of the jewelry, loose diamonds, colored stones, machinery, designers, and all allied industries. Total 360-degree operational digital platform will be available to you for the entire 365 days. There is no time limit. You decide your time of operation. आप सुबह 8 बजे शुरू करिए आपका काम, शाम को 12 बजे बंद करिए रात को, तो भी कोई आपको ना नहीं बताएगा। इसके साथ आपको 6 यूनिक एग्जीबिशन हम देंगे 1 साल के अंदर, और इन 6 एग्जीबिशनों में हम 5 जोन के करीब 75,000 ज्वेलर्स को इनवाइट करने की कोशिश करेंगे, जो करीब 1200 शहर में रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में। और हर एक पार्टिसिपेंट जो है, जो इसमें ज्वाइन करेगा, वो एक ज्वेलरी स्टूडियो पाएगा जहां जिसमें 3 कलर की लाइटिंग होगी, जिसमें डिजिटल कैमरा होगा ट्रिपॉड के साथ में, सारे हेडफोन्स का सेट होगा। आपने जो जो जिन जिन चीजों की कल्पना की होगी वो सारी की सारी चीजें आपके सामने होगी। आपके खुद का एक शो विंडो होगा, जिस तरह से आपकी ज्वेलरी के बूथ के सामने आप ज्वेलरी डिस्प्ले करते हैं, कस्टमर आपकी बूथ के सामने की ज्वेलरी देख के आपका नाम पढ़ के आपके बूथ के अंदर एंटर करता है। इसी तरह से यहाँ भी प्लेटफॉर्म में आपके नाम के साथ में आपकी सारी हिस्ट्री जुड़ी होगी और आपके सारे प्रोडक्ट्स लोड किए होंगे। आप 25 प्रोडक्ट लोड करना चाहें तो आपकी मर्जी है, और 25,000 प्रोडक्ट भी अगर आप लोड करना चाहें तो ये अनलिमिटेड है, और सारे के सारे व्यूअर्स इसको ऑनलाइन देख के सिलेक्ट और ऑर्डर भी कर सकते हैं। एक विजिटर आपका नाम पढ़ के, आपका शो विंडो देख के जरूर चाहेगा कि एक बार मैं इनकी इन्वेंट्री देख सकूं। वो आपको तुरंत कांटेक्ट करेगा और विनती करेगा कि मैं आपसे अपॉइंटमेंट चाहता हूं, और आप उनको तय करके बताएंगे आप कब आपसे उनसे बात कर सकते हो, आप किस समय में आप आपका कलेक्शन दिखा सकते हो। जो उनकी डिमांड है वो हिसाब से आप उनको कलेक्शन दिखा सकते हो। आप ही की ऑफिसेज में बैठ के आपको दिखाना है। आपके बायर को भी अपने सेल्स स्टाफ के साथ में अपनी ही दुकानों में बैठ के देखना है। किसी को कहीं घूमने के लिए जाना नहीं है। इससे बेटर कन्वीनियंस आपको या आपके बायर को मिल नहीं सकती है। जब एक कैमरा और एक स्टूडियो का जो सेटअप है वो आपके सामने लगेगा
तो सामने वाला तंग रह जाएगा। जिस तरह से माल की क्वालिटी और जिस तरह से माल का गेटअप आएगा, आपके ज्वेलरी का गेटअप आएगा, आप मान नहीं पाओगे। आप एक बात समझिए कि आप एक साथ में 2 कस्टमर, 4 कस्टमर, 6 कस्टमर या 15 कस्टमर को भी अटेंड करना चाहते हो तो आपको इतने नंबर ऑफ कैमरास और स्टूडियो ऐड करने होंगे, और आप कितने भी ऐड कर सकते हो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आपके पास एक छोटी ऑफिस है तो आप सिर्फ एक कैमरा, एक स्टूडियो से काम शुरू कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सोच नहीं पाएंगे कितना सक्सेसफुल तरीके से आप काम कर सकते हो। आपको तो ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, आप तो शायद घर से बैठ के भी काम कर सकते हो। और अगर आपके पास बड़ी ऑफिस है, आपके पास 5, 25, 50 लोगों का स्टाफ है, तो सर आप हर एक व्यक्ति और हर एक स्टाफ का उपयोग करिएगा। आप ज्यादा स्टूडियो ले सकते हैं, आप ज्यादा कैमरा ले सकते हैं, और ये सारा पैकेज में आएगा। आपको आपकी कंपनी की डिटेल्स और आपकी कंपनी की हिस्ट्री सबको पढ़ने मिल जाएगी। ये जो प्रोग्राम है ये कन्वीनियंस का प्रोग्राम है। ये रिटेलर और होलसेलर के समय बचाने का और पैसे बचाने का प्लान है। आप ये भी तय कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे कि आप एक विजिटर तय कर सकता है उसको कौन सा एग्जीबिटर को मिलना है, एक एग्जीबिटर भी तय कर सकता है उसको कौन से विजिटर चाहिए। If you can have a small office, you can work on this in the most efficient manner. एक बहुत बड़ी एडिशन इसमें हमने की है, और ये है स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो होते हैं, विंडोज के, ईबे के, अमेजोन के, गूगल के, ये यूज करते हैं, जो ऑटोमेटिकली आप जिन जगहों से जिन लोगों से बात करते आते हैं उनको प्रेफरेंसेस देके जब आप खोलते हो तो अपने आप वो आगे आ जाता है। सॉफ्टवेयर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत के जरिए प्लेटफॉर्म आपको सही कंपनी से मिलवाएगा, सही लोगों से आपकी चॉइस होगी। प्लेटफॉर्म स्मार्ट रिकमेंडेशंस देगा फॉर द पीपल यू वांट टू मीट based on the preference and choices you have had earlier. समय और उत्पादकता की बचत होगी। You will save time and you will increase your productivity 100%. You can also have a live chat with your exhibitor. आपको कुछ नहीं करना है तो आप बिल्कुल चैट करके आपके एग्जिबिटर से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। भाई साहब आपके पास कंगन मिल जाएंगे 30 ग्राम और 50 ग्राम के बीच में, आप ये सवाल पूछ सकते हैं। सर आपके पास 12 ग्राम और 15 ग्राम के करीब के ब्रेसलेट मिल जाएंगे। आप सवाल चैट करके पूछ सकते हैं किसी को भी। हमने एक और बहुत आइडिया रखा है इसमें, अच्छा हमने एक लॉन्च पैड बनाया है। हर एक व्यक्ति बहुत इनोवेटिव होता है, हर एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर है अपने नए प्रोडक्ट निकालते रहता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। अब हर एक मैन्युफैक्चरर और हर एक होलसेलर अपने खुद का फैशन शो, अपने खुद का लॉन्च, अपने सारे नए कलेक्शंस अपने कस्टमरों को अपने ही ऑफिस के अंदर इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनवाइट करके ये सारे के सारे एक लॉन्च पैड में दिखा सकता है। आप समझ नहीं पाओगे, आपके पास 200-300 लोग हो जाएंगे एक लॉन्च के मौके पे, और इसमें आपको कोई होटल नहीं बुक करनी है, कोई बैंक्वेट बुक नहीं करना है, एक नॉमिनल कॉस्ट में आपको इस लॉन्च पैड का पूरा फायदा मिल जाएगा। अब आपके पास पूरी हिस्ट्री रहेगी, जिस दिन से ये प्रोग्राम शुरू होगा उस दिन की हिस्ट्री रहेगी। आपकी ऑफिस, आपकी जगह पर कौन कौन विजिटर आ चुका है, वो क्या क्या देख रहा था, वो क्या ज्वेलरी चुन रहा था, वो क्या सोच रहा था। आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी आपके स्टाफ को। जीजेएस की टीम पूरी तैयार रहेगी, आप जुड़ जाएंगे उसके बाद में। सेमिनार्स और वर्कशॉप्स इसी प्लेटफॉर्म पे हम चलाएंगे और आपके स्टाफ को ट्रेन करेंगे। और यही एक बहुत बड़ा मौका रहेगा
के साल के काफी समय जीजेएस वर्चुअल अपने खुद के सेमिनार्स रखेगा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे होंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट स्पीकर्स को इनवाइट किया जाएगा। इसमें बहुत लोगों का सवाल यह हो सकता है कि सर इसमें आप किस तरह से पता चलेगा कि कौन कहां पर है, या इसमें कैटेगरीज क्या क्या रखी है। तो हमने सर इसमें काफी कैटेगरीज रखी है। एग्जीबिटर के लिए गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, सिल्वर, लाइट वेट ज्वेलरी, रिंग्स, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, चेन्स, मंगलसूत्र, ब्राइडल ज्वेलरी, क्यूत्योर ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी, मेंस ज्वेलरी, चिल्ड्रंस ज्वेलरी, loose diamonds, loose colored stones and pearls, silver jewelry and artifacts, platinum jewelry, gift and articles, vintage jewelry for collectors, synthetics and simulants, laboratories and education, designers, packaging. आज इतनी सारी कैटेगरीज हम रख सकते हैं क्योंकि हर एक कैटेगरी में से कोई ना कोई इसका वेंडर इसमें ज्वाइन जरूर होगा, एग्जीबिटर, और कोई भी विजिटर इस कैटेगरी है। और ब्राइडल ज्वेलरी में अगर 100 लोगों के लिस्ट में नाम आता है तो 100 के नाम उनके सामने आ जाएंगे और उनको तय करना है उनको किसके पास जाना है। आज विजिटर्स में भी हम ये तय रखेंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। ये चेन स्टोर ब्रांड के हैं, ये रीजनल मल्टी स्टोर ब्रांड के हैं, ये लार्ज रिटेलर है, ये मीडियम रिटेलर है, ये स्मॉल रिटेलर है, या ये मशीनरी का बायर है, या ये अलाइड प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए आया है, ये इंटरनेशनल बायर है। अगर एक्सपोर्ट के अगर उनके ऑर्डर देने की इच्छा है तो यही प्लेटफॉर्म उनको बिल्कुल मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये सारा का सारा जो है उसमें हमारे को रियली एकदम सूक्ष्म तरीके से बताइए कि इसके बेनिफिट क्या है और इसकी पैकेज कॉस्ट क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जीजेसी आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा मार्केटिंग हर एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के लिए। हमारे पास इसका डिजिटल सपोर्ट मिलेगा। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में हमारे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, ये प्रोग्राम को नंबर 1 प्रोग्राम मेंटेन करते रहेंगे। हर एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट टॉप कैटेगरी में रहेगा और हर एक पार्टिसिपेंट को अपनी एक पोजीशन हमेशा बेस्ट में बेस्ट जगह पर रहेगी। यहाँ पर आपको आपकी ज्वेलरी शोकेस करने का मौका मिलेगा। 365 दिन का प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप हर एक साल के लिए ये यूज कर सकते हैं। आपके ऑफिस के टाइम के अंदर आपके यहाँ पर कोई भी विजिटर 1 साल तक आपके यहाँ पर आके पूरा बिजनेस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम में कर सकता है। इसके साथ साथ हमने 6 एग्जीबिशन का एक सिचुएशन खड़ा किया है। आज हम जानते हैं कि हमको साल में 5, 6, 8 एग्जीबिशन में पार्ट लेना पड़ता है, तो क्यों नहीं हम, जब हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में रिटेलर्सों का जो रियली वैल्यूएबल डेटा है, उस डेटा को हम क्यों नहीं यूज करते। हमारे शॉप में 75,000 रिटेलर की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको 75 मिल गए या 750 रिटेलर मिल गए तो हमारा काम बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। तो ये 6 दिन के 6 एग्जीबिशन साल भर में रहेंगे। एवरेजली 2 महीने में एक एग्जीबिशन रहेगा। ये आपकी पूरी समझने की और समझाने की कैपेसिटी को चेंज कर देगा। आपके बिजनेस करने की सिचुएशन चेंज कर देगा। आपको हर जगह अब दौड़ने की, घूमने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी मिलेगी। आपका कस्टमर डायरेक्टली सामने बैठ के माल खरीद सकेगा आपके ऑफिस में। इसके लिए कस्टमाइज्ड ज्वेलरी स्टूडियो विद अ फुल लाइटिंग विद एक्सपीरियंस ऑफ रियल बाइंग विल बी अवेलेबल टू यू। हाई डेफिनेशन वेब कैमरा आपको मिल जाएगा और ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी जो है ये एक पैकेज डील में आपको हम पेश कर देंगे। इसके साथ में ये स्टूडियो भी काफी बहुत बड़ा है, करीब 25 किलो वेट है इसका आपको डिलीवरी आपके ऑफिस तक पहुंचाने की टोटल कैपेसिटी। हमने इसके लिए
5 कैटेगरी हमने बनाई है पार्टिसिपेशन के लिए। सबसे पहली कैटेगरी है जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एक प्रीमियम कैटेगरी में जो आना चाह रहे हैं। प्रीमियम कैटेगरी जो 365 दिन का एग्जीबिशन शो है और 6 यूनिक एग्जीबिशंस का जो शो है, और वो पैकेज डील पूरा स्टूडियो की टोटल पैकेज के साथ में 4,75,000 कॉस्ट कर रहा है। मैन्युफैक्चरर और अगर होलसेलर चाहता है कि हमें इसमें पार्ट लेना है लेकिन हमको प्रीमियम कैटेगरी में नहीं रहना है, तो सर उनके लिए 4,25,000 है। अलाइड और मशीनरी को भी हमने इंक्लूड किया है। उनमें भी 2 कैटेगरी हमने बनाई है। एक अलाइड कैटेगरी और मशीनरी में हमने एग्जीबिशन ऐड किए हैं। जो एग्जीबिशन में पार्ट लेना चाह रहा है साल के 2 बार, उनको 2,25,000 है, और जो अलाइड और मशीनरी वाले विदाउट एग्जीबिशन में पार्ट लेना चाह रहे हैं उनको 1,25,000 में हम जोड़ रहे हैं। हमने एक कैटेगरी ऐसी बनाई है क्योंकि हमारे डिजाइनर्स जो है वो बहुत छोटी मात्रा में काम करते हैं। उनको हमें एक मौका देना चाहिए हमेशा कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सके। सिर्फ 50,000 में एक डिजाइनर 365 डेज का ये पैकेज ले सकता है, एज लॉन्ग एज वो डिजाइनर रजिस्टर्ड एज अ डिजाइनर होना चाहिए कहीं ना कहीं, और इसका एक लर्निंग मात्रा में इसका उपयोग कर सके। ये सारे पैकेज की जो डिटेल्स हैं ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी। इसकी जो पेमेंट है, जो टॉप कैटेगरी 4,75,000 की है, उसमें आपको तो सिर्फ 1,75,000 अभी देना है, और उसके बाद में आपको 3 पोस्ट डेटेड चेक्स दे देने हैं जो लास्ट दिसंबर तक क्लियर होगा। जो मशीनरी और डिजाइनर की जो कैटेगरीज है उसमें आपको फुल पेमेंट देना होगा एडवांस में। जीजेएफ वर्चुअल जो है ये 1 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। जो 6 एग्जीबिशन की मैं बात कर रहा था उसमें जो सबसे पहला वर्चुअल एग्जीबिशन जो होने वाला है वो 21 से 26 सितंबर को होगा 2020 के। ये सारी डेट्स जो है हमने बहुत सोच समझ के तय की है। इंडस्ट्री की, त्योहारों की जो डिमांड की सिचुएशन और आज के कोविड के हिसाब से भी जो सोच समझ के काम करने की जो हमें समय देखने की जरूरत है वो देख के हम जरूर करेंगे। हम ये भी जरूर करेंगे, कोई भी प्रेजेंटली जो एग्जीबिशंस कर रहे हैं उनके डेट के साथ हम कभी हमारे कोई भी प्रोग्राम को क्लैश करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो भी एग्जीबिशंस कर रहे हैं वो जरूर अपने हिसाब से कर सकते हैं और हमारा उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। आप चाहेंगे कि अगर आपको कोई वीडियो डिस्कशन करना हो, जो आपका हमारा एक्चुअल डेमो है, तो मैं आपको उस डेमो को दिखाने की एक कोशिश करता हूं। इतना जोर से यहाँ बारिश गिर रहा है, मैं मरीन ड्राइव पे यहाँ से रिले कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हो। और इसमें शायद अगर आपको कोई कमजोर सिग्नल आ जाए तो ये मत समझना कि इसमें कोई कमजोरी है। तो ये छोटा सा एक डेमो है कि किस तरह से आपको एक वीडियो का डिस्कशन हो सकता है, एक बायर सेलर क्या देख सकता है इस समय के अंदर। ये मत समझना, और ये रिकॉर्डेड वर्जन है, लेकिन कोशिश करता हूं मैं आपको दिखाने की।
तो आपने मैं मानता हूं कि आपने इस प्रेजेंटेशन को समझा होगा। मैं मानता हूं कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत शेकी लगी होगी या शायद बहुत क्लियर ना दिखी हो, लेकिन जब एक ब्रॉडबैंड के प्लेटफॉर्म से ये रिले की जाएगी, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको ज्वेलरी दिखेगी। बहुत आसान तरीके से आप इसमें बिजनेस की डिस्कशन कर पाएंगे। जो रिटेलर के कंपनी के परचेस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बहुत आसानी से ज्वेलरी देख पाएंगे। होलसेलर्स इसको अपनी ज्वेलरी को आसानी से दिखा पाएंगे। और मैं मानता हूं कि आपको एक बहुत ही बढ़िया मौका रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाम लिखवाना चाह रहा है या रजिस्ट्रेशन लिखवाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और जीजेएफ की टीम, आप आपके नाम भी लिख सकते हो अभी, और आपको इसके डेमो या आपके डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करके आपके रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तो मैं अब संयम मेहरा से विनती करूंगा कि इस प्रोग्राम को आगे ले जाएं। Thank you, Ashok bhai. Indeed a wonderful presentation right now done by you. और मुझे लगता है कि थोड़ा सा था उसके अंदर धुंधला, लेकिन it was still the diamond set was very clearly seen by all of us. And मुझे लगता है कि जिस तरीके से बायर और सेलर सामने बैठ के माल दिखाकर उस टाइम के ऊपर अपना कस्टमर का भी फेस, ज्वेलरी भी देख रहा हो, इमीडिएटली बात कर करके छटवा के वो अपना डाल सकता है उसके अंदर, ट्रे के अंदर। तो मुझे लगता है कि एक एक्चुअल एक्सपीरियंस जो रिक्वायरमेंट है वही चीज दिखी मुझे इस चीज के अंदर। सो थैंक यू अशोक भाई फॉर द एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। I think I would like to call Nitin Khandelwal ji as our retailer. And hello. To take Haji? Question answers you want to take now or later? I think is there any questions right now there? How can we assure designers design? So you can let somebody speak in the meantime and prepare the questions then. Yes, we'll prepare the questions and then later we can do that. So I think Nitin bhai as a retailer can tell us that how did he like this, and what are the expectations from this platform, and what was the look and feel of it. So Mitesh, can you unmute Nitin bhai? Yes sir, I have unmuted him. प्रेजेंटेशन को अपन ने कई बार देखा है, और जब अपन पूरी तरह से कन्विंस हुए तभी अपन ने इसको लॉन्च किया। पिछले 2 महीने से अपन इस पर मेहनत कर रहे थे, और कल हमने इसको रिटेल, हमारी जो टीम है उनको परचेसिंग के लिए ट्रायल के लिए तीसरी चौथी बार, जैसा बोलते हैं ना ह्यूमन ट्रायल, तो हम लोगों ने पिछले 1 महीने में इसकी 4 से 5 ह्यूमन ट्रायल किया। साथ हमारी परचेस टीम को बैठाया, गोल्ड डायमंड और उसके लाइट और कलर सेपरेट कर करके देखे, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी उसमें क्या आ रही है उसका डिटेल स्टडी किया। और ये जो आप प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं ये पूरे R&D के बाद में पूरा हुआ है। पहले तो हम भी सेटिस्फेक्शन नहीं थे, हमने काफी कंपनियों से भी करा, और इसके अंदर पूरे टीम ने सॉफ्टवेयर के अंदर जो नेसेसरी चेंजेस है वो सारे चेंजेस उसमें करा है। और फिर भी जैसा हम जब प्रैक्टिकल शुरू करेंगे उसके बाद जो माइनर हमको लगेंगे, जैसा हमने PMI या कोई भी प्रोग्राम में चेंजेस करते थे वो सारे चेंजेस इसके अंदर होंगे। तो ये वर्चुअल, अशोक भाई ने आपको पूरा डिटेल बताया है, टाइम, एनर्जी, मनी, ये सारा हम लोगों का भी बच रहा है। आपने अभी तक के खाली संयम भाई और अशोक भाई अपने खाली होलसेलर के हिसाब से क्या बचत होगी बताया। हमारे शरीर का जो रिटेलर्स है उसको भी बम्बई आना जाना, वहाँ पे रहना, और उसके बाद में पूरी इन्वेंट्री देख नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मुझे नजर आया कि कल में मेरे यहाँ के जो सेल्स के लेडीज स्टाफ है उनको लेके साथ में खड़ा था। अब मुंबई आना जाना रहना तो कोई भी एक जेंट्स आता, जो बेचता था वो परचेसिंग को नहीं आता था, और जो बेच रहे हैं, जो काउंटर पे सेल्स कर रहे हैं, वो कभी पूरे इन्वेंट्री को देख नहीं पाते थे। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अब जब भी इसमें एग्जीबिशन है या पूरा देखना है, तो जो हमारी एक्चुअल सेल्स टीम है अलग अलग फ्लोर की, वो पूरी ज्वेलरी को खुद वो देख सकेंगी, तो उनको ज्यादा अच्छी आइडिया आएंगी कि मुझे कौन सी ज्वेलरी चाहिए जो कस्टमर मांग रहा था। अभी बेचने वाला और परचेस करने वाले दोनों अलग अलग थे। तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दिस, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। और जो मुझे लग रहा है कि जो अपन ने सब किया है
the need of the hour, and this is the reality. You may call it a disruptive innovations. तो मुझे कोई डिफिकल्टी एज ए रिटेलर जितनी थी हमने एक महीने में पूरी सॉल्व कर लिया. Over to Sayyid. Yeah, thank you. Ashok bhai, can you request our Ashish Pete ji, जिनके 26 शोरूम्स हैं महाराष्ट्र में और नियर अबाउट्स, वो भी आकर अपना एक बता दें कि किस तरीके से ये उनको लगा एज अ रिटेलर. आशीष पेटे जी. गुड इवनिंग सबको. इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया. और जब इस आइडिया को मैं एक रिटेलर की तरफ से देखता हूँ, आप मोस्टली आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स आर देयर टुडे ऑन द जूम, लेकिन अगर रिटेल की तरफ से मैं देखता हूँ तो मुझे कई सारे इसमें पॉजिटिव्स दिखाई देते हैं. एक तो मैं एज ए रिटेलर मैं जाता हूँ अक्रॉस इंडिया के एग्जीबिशंस मैं कर रहा वही कर रहा था. सैम भाई को व्हाट्सएप किया मैंने फर्स्ट सेट ऑफ वहाँ पे क्या क्या नया डिजाइन मिलता है वो मैं चुन के लेके आता हूँ. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सबको पॉसिबल नहीं होता है. जो कोई पुणे का रिटेलर है उसको कलकत्ता जाना है या चेन्नई से डिजाइन देखना है, वो नहीं कर पाता. वो ये वर्चुअल एग्जीबिशन में मेरे हिसाब से वो उसको इजीली कर पाएगा. या कोई भी रिटेलर फिजिकल एग्जीबिशन में जब जाता है तो उसके पास 2 दिन और लिमिटेड 8 आवर्स और वो वॉक करके सब करना, वो लिमिटेशंस आती है. लेकिन ये वर्चुअल में वो लिमिटेशन नहीं आएंगी. और माल देखने के लिए जो परचेज टीम और वेंडर दोनों के बीच में जो एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके लिए ये जीजीएस वर्चुअल आई थिंक इज़ द आइडियल थिंग, जहाँ पे पर्सनलाइज चैट हो सकता है. जैसे नितिन मैंने कहा, हमारे डिफरेंट परचेज टीम डिफरेंट सिटीज़ में लोकेटेड होती है, वो एक साथ ही माल देख सकती है. और डिजिटाइजेशन इज़ द वे फॉरवर्ड. और ये डिजिटाइजेशन का जो फॉर्मेट आया है कि जिसमें विजुअल मैं माल देख पाऊंगा, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू. तो ये जो सिर्फ एग्जीबिशन में होता था, तो ये जीजीएस वर्चुअल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज़ अवेलेबल टू अ रिटेलर 365 डेज. अगर मैंने कुछ चीज़ देखा संयम भाई से या श्रृंगार से कहीं से भी, तो मेरा जो परचेज टीम है वो रेगुलरली एवरी वीक ही कैन कीप गोइंग बैक टू द सेम वेंडर ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस. सर ये मेरा रिक्वायरमेंट है, क्या है आपके पास, क्या माल है मुझे दिखाओ. और लॉजिस्टिक्स इतना डेवलप हो गया है कि जैसे यूएस में काम होता है फ़ोन पर, और लॉजिस्टिक्स में सिमिलर काम प्रॉबेबली हो सकता है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. थैंक यू. Thank you, Ashish bhai. There is one question which has come right now. I would like to address that first. What is the touch and feel? How can the touch and feel be there? And how can we assure designers design as how it can secure about one to copy it? कोई दूसरे एक दूसरे के डिजाइन कॉपी ना कर सके. So the screen which is there, which will be locked. And first of all, आपके हाथ में रहेगा परमिशन देना कि आपके स्टॉल के ऊपर या आपके साइट के ऊपर कोई आ सके माल देखने के लिए. आप अलाउ करोगे, उसके बाद ही वो आ सकता है. उसके बाद आप इमीडिएटली उसको ब्लॉक रखेंगे आपके उसको ताकि कोई स्क्रीन शेयरिंग या स्क्रीन को क्लिक करके डिजाइन को इधर उधर भेज ना सके. सो देयर सिक्योरिटी विल बी देयर. स्मॉल एंड डेलिकेट पीसेस कैन बी डिस्प्लेड. द वे इट कैन बी डिस्प्लेड कि वेलवेट के जो मैनिक्विन्स हम लोग दे रहे हैं स्टूडियो के रूप में, 2 लाइट्स, कैमराज, उसके बराबर तरीके से जो वेलवेट के मैनिक्विन्स, चेन्स के, सेट्स के, राजकोट आइटम्स के, वो सब चीजों का वहां पर रहेगा. तो बहुत इजीली, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रांसमिशन, रियल टाइम ट्रांसमिशन आपके सॉफ्टवेयर से, कैमरा से लेकर वो, और आपका रियल टाइम बात करने का तरीका. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एंड दैट इज द R&D विच इज रिक्वायर्ड. सो आज के तारीख में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि माल कैसे दिखाएं. माल ही दिखाने का तरीका यही होगा और इसी तरीके से अपन आगे बढ़ सकते हैं. आई वुड लाइक टू कॉल बचराज जी बामलवा फ्रॉम नेमीचंद बामलवा ज्वेलर्स कि वो आके अपना एक, हाँ बोलिए आशीष भाई. जो टच एंड फील का जो क्वेश्चन आया था ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन द सेल इज हैपनिंग बिटवीन B2C. B2B में लेने वाला भी समझदार होता है, बेचने वाला भी समझदार होता है.
सो उसमें टच एंड फील इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि लेने वालों को मालूम है वो क्या चीज देखने के बाद you can understand what kind of finish is there, what kind of product is there. So touch and feel, I think, is more from B2C point of view. Thank you, Ashish bhai. And majority, Sayam, can I speak on that? Yeah. Thing? Yeah. Majority of the B2B जो हमारा transactions होता है, उसके अंदर एक design pattern और feel how it looks on the neck, that is very important, which everybody likes to see. And for that only we are providing the studio, and studio is provided only for that reason कि you can show everything on that. And we are providing 3 lights. Basically 3 lights का मतलब ये है कि 3 lights will be the color changing lights. That is, one is white, one is yellow, and one is daylight. So that whatever jewelry is comfortable on that particular light will be used when you are taking showing the product to your customer, because everyone has a different requirement as far as jewelry is concerned. So B2B के अंदर this will work the best, and this will be ultimate thing which will give the real picture quality. And the reason for that is normally हमारे पास में किसी के भी पास में लाइट बहुत ऊपर होती है, वो एडजस्टमेंट ऑफ लाइट नहीं होता है, उसकी वजह से ज्वेलरी बराबर नहीं दिखती है when we are doing shoots or something. So that will help us to show the product to our retailers. Over to you, Sayam. Thank you, Avinash ji, for explaining it excellently. I would like Bachraj ji also to say a few words first. In this, there are a lot of questions. We'll take it one by one after Bachraj ji and Sridhar ji have spoken their 2 words. Bachraj ji, over to you. Bachraj ji, can you hear us? Mitesh, have you unmute him? हेलो, अनम्यूट सर। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, सुन रहे हैं। अचानक से फिर से म्यूट हो गया, आई थिंक। अविनाश जी, कैन यू रीचेक? अनम्यूट है बच्चा जी, अनम्यूट सर। या बट आई डोंट थिंक कुछ बोल नहीं रहे। बच्चा जी, कैन यू हियर अस? Bachraj ji is unmuted. Sayam. सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आ रही है सर आपकी आवाज। But I think it is coming and going. I think Bachraj ji, your network out there is very low. Yeah, I think now it's okay. Bachraj ji, बोलिए। ठीक है, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम भी आ रही है। मैं चेयरमैन का धन्यवाद करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम को आज उन्होंने लॉन्च किया है। हमारे चेयरमैन ने और सब ने ये बोला है कि ये आज का दिन जो है वो गौरवशाली दिन है। मेरा व्यू थोड़ा हमेशा डिफरेंट रहता है, तो मैं ये बोलता हूँ कि आज का दिन गौरवशाली नहीं है, ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये दिन गौरवशाली तब होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा और हमारे इस वर्चुअल एग्जीबिशन की शुरुआत हो जाएगी। जो इसका शुरुआत का पहला दिन होगा वो गौरवशाली दिन होगा। इसकी बेसिक थीम जो है वो ये है कि चेंजिंग टाइम के साथ में हम किस तरह से अपने आप को चेंज करते हैं, और जीजेसी इसी के लिए जाना जाता है कि चेंज को किस तरह से चेंज किया जाए और किसी भी चेंज को किस तरह से एडॉप्ट किया जाए, इसके लिए जीजेसी फेमस है और सारे काम जो वो करती है वो चेंज के साथ में करती है। इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और हम सब एक साथ में है, साथ में मिल करके किसी भी इस डिसीजन को हम लोग बिल्कुल एक मंजर तक पहुंचाएंगे और ये इस प्रोग्राम को एक नया प्रोग्राम बना करके इसको देंगे ताकि हमारी इंडस्ट्री को, रिटेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, होलसेलर को, सबको फायदा हो।
ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। Thank you, Bajaj ji. I think at this moment on the WhatsApp, we have received confirmation of 25 people at this moment and 10 previously. So मुझे लगता है end तक बताएंगे कितने हुए. एक और question आ रहा था before we take Sridhar ji online कि what will be about the policy of payment and other settlement with GJS. So I think GJS का जो show है उसके सामने इसको चल भी कर सकते हैं जिसको इच्छा हो पेमेंट्स, और उसका जो बराबर प्लेट चीज है वो आप ईमेल के रूप में कल या परसों तक हम आपको बता देंगे कि जिसको पार्ट लेना है, जिसको जीजेएस एक्चुअल के अंदर लेना है, जून विल बी देयर नेक्स्ट ईयर, एंड whoever wants to adjust also in this, that system is also possible. So I think tomorrow we will be doing that. श्रीधर जी, over to you. Request you, आप मास्क के उतार के हमको बताइए कि क्या आपको कैसा लगा और पूरा साउथ को किस तरीके से आप देखते हैं रिटेलर्स को इसके अंदर. Over to you, Sridhar ji. Yeah, good evening to everyone. First of all, this is the main agenda of GJC, promoting, protecting and progressing. So the way it started its transformation, this is to promote and again to protect, and this is the path to progress. And this is the need of the hour. This is the need of the hour. Everybody wants the jewelry, everybody wants the product, everybody wants to be in the race, but we are unable to procure the products and we are unable to fill the products. And ये जो platform है, it is something amazing. Thanks to the chairman and thanks to the entire team who has initiated this, who has really put their mind, heart and soul into this. This is going to be a super success and this will be a role model for the entire industry. And this way, things can be achieved better. Of course, everybody has said the same thing. Time consumption will be very, very less. And speciality of this is particular person. जो अभी हमारा में एक काउंटर को एक हेड है, उसका असिस्टेंट्स है, समझो 15 काउंटर है, जो भी एग्जीबिशन को 15 लोग नहीं आ सकता है, परचेस मैनेजर एक आए तो भी वो he will not be in confusion. But in this platform, particular person of the chains, he can see that, and particular person of that particular product can touch, I mean, feel it and take it anyway, known suppliers, and it will be an amazing thing. This will be, I think, a super successful, and this is the real transformation which we are looking for, and this is going to be super successful. And I wish all the very best to the entire team, and have a great time. We will be glad and honored, and this will go to each and every corner of the country. Each and every village can have it. Each and every district can have it. Everybody can have it. So now, by this initiative of GJC, the world is unlimited. Your limit is unlimited. So this can really go wonderful. And this is the type of initiatives what we were looking for. Again, thanks to the entire team. Thank you so much. Thank you, Sridhar ji. I think right now also we got 6 confirmations here. There's one question which is coming up. I think anybody from the exhibition committee can take it. How will the designers also be benefiting out of this? So Avinash ji, if you can say, how will they participate and how can we benefit? And I think Sai, Nilesh bhai, Sanjay bhai, anybody wants to answer, they can unmute themselves and anybody can take the questions. As Ashok bhai has already said, we are creating a budding designers thing, and we have kept at a very, very low price of 50,000 and plus. So it will be a big importance for all the budding designers to participate and utilize this platform for 365 days plus the 6 exhibitions. So it is going to be a very easy thing for everybody, all the budding designers to join. For that, we will come out with all the regulations, rules and all, so that there is no misuse by some other people also. We will not be offer this the 365-day platform. Sahil bhai, you can take this question.
Yeah, As basically now like to- okay. Yeah, say. The Go ahead. need of the hour is that from the grassroots, from the designing to the manufacturing, the wholesale manufacturer all have to work together in hand with the retailers, so that there's a smooth supply chain continuously retailers are getting. And with the the uncertainty on the business front, the supply should be regular, so that it is not like that the customers are there, the stock is not there, and vice versa. So this is a very brilliant platform and very good platform in which interaction is very much practical, feasible between the retailers and all the chains together. I appreciate What will be the help from the retailer? You mean, I think the retailers want to know that उनको भी knowledge कैसे मिलेगी ये product को यहाँ इस platform को बराबर use करने के लिए? Will there be any seminars or anything from our side to teach them? Definitely, we'll be also we'll be teaching retailers how to use this platform, and also जितने भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इधर exhibitors की तरह जुड़ेंगे, उनको भी हम teach करेंगे कि भाई कैसे इसको बेहतरीन तरीके से use करें, and eventually ये it's a win-win game. रिटेलर्स का इतना कॉस्ट बचेगा, उनका टाइम बचेगा और पूरा वर्किंग आवर्स यूटिलाइज होगा, क्योंकि वो अपने ऑफिस के टेबल पे बैठे ही सब प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं. और सिमिलरली होलसेलर्स का हमारे लिए इंश्योरेंस बचेगा, हमारे लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगा, हमारे लिए स्टाफ का अकोमोडेशन बचेगा, हमारे लिए स्टाफ के लिए खाना पीना बचेगा. ये सब जो सेविंग्स है इवेंचुअली पूरे साल में जब हम काउंट करेंगे इतने सब्सटैंशियल होंगे कि इट बी अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ प्रॉफिट आल्सो. Great. There is one more question. Government monitors public domain and not a private domain. So Avinash, would you like to take that one? See, basically, that question is making people, they are trying to say there will be a government eye on our exhibition and all. See, as far as that is concerned, there is always an eye of the government, and we have an I&B policy. According to that, we cannot hide any information for sure. But this is a very, very private platform, so nobody will be bothering anybody of us. No, there is one more thing. There is going to be KYC of each visitor. We are planning to keep it logical. No, that question was the government eye on the platform. Basically, Facebook and WhatsApp is tracked by them, the government. That was the thing. So as far as data security is concerned, definitely we are not going to touch your data at all. Whatever live combination is happening, it will not be recorded by anybody in the GJC team. It will be between you and them only. That much we can say. Data is secured for you. It will not be used by GJC team at all. There is one more thing in this. That there will be a KYC system for each and every visitor. Visitor will not be allowed to come on this platform as he will have to have a GST number, and he will have to pay some small amount for the entire year, which is amounting from 200 to between 500 a range, so that serious buyers come in this. GJC team from the 6th of August, which is tomorrow, will be having a batches of 100 retailers each. 100 retailers के batches के साथ कल दो batches कल हैं. उनको समझाया जाएगा किस तरीके से माल देखना है. अपने मोबाइल के ऊपर माल देख के सिलेक्शन, that is not we are going to promote. या iPad सामने वाले के पास को उस तरीके से माल देखना ही हमारी प्रमोशन का तरीका है. So this is the thing which we are going to go. Nitin bhai, anything you want to say? हाँ, देखो PMI के अंदर भी हमारे पास में और भी 10 साल का डेटा है. हमने आज तक के हमारे टीम के अंदर मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर सब अपने कभी शेयर नहीं किया. इवन आज मैं भी हूँ तो मेरे पास में कोई डेटा नहीं है, क्योंकि इट्स प्रॉपर्टी ऑफ दी GJC. और जैसा अपन एग्जीबिशन भी कर रहे थे तब भी डेटा अपने पास में पूरा था. अपने पास तो जब अपन हॉल के अंदर प्रोग्राम कर रहे थे, अपन जो एग्जीबिशन होने वाला है उसका भी रिकॉर्डिंग पूरा होता. तो डेटा अपना प्रोटेक्टेड रहता है. जो दिख रहा है वही दिखेगा, उसके अलावा कोई भी इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, अपन किसी को अलाउ करने वाले. So आजा एक और इसके अंदर चीज क्वेश्चन है किसी का. How will the business there will be track on the business that we have done ourselves. तो इसके अंदर एक अशोक भाई, I think you can answer this thing. How can a person track his own business, which is hard to track through this platform? Most important fact is that I don't think anybody wants anybody to track his business. Number one, the tracking of business is your own business. GJC is not interested in tracking your business. Nobody's interested in tracking your business. What we can track is the type, the visitors who are coming to every booth is one thing that we can have track of.
We cannot have track of anything beyond this. The exhibitor is in full control of what recordings he wants to maintain, what recordings he wants to delete, what he wants to keep. It is totally his own personal decision. The visitor also has no control on this. Thank you. I think the thing is that a person, आपके स्टॉल के ऊपर कितने लोग आए, आपका पेज कितने लोगों ने देखा, आपको वो सब चीज पता लग जाएंगी. आपकी खुद के माल सिलेक्शन के टाइम पर किसी ने 5 किलो माल निकाला, फिर निकालने के बाद बोलता नहीं मैंने 2-2.5 किलो ही निकाला है. You can record your own thing, but we are not going to keep any recording of any retailer or any wholesaler. आप अपनी recording खुद अपने पास रख सकते हैं. So that thing is there inside this as a software. So this thing is there. I would like to come to another question, Mitesh. If there are any other questions which you think is supposed to be taken, which I have missed, we request you to come. Just a second, sir. Sanjay, so there is one question, Sayam bhai. Just a second, I'll repeat the question. Is this going to break the business of local state level wholesalers, being all retailers can access it in village level also? I think आज के तारीख में जैसे सब हुआ, I think everybody has a right and everybody has a right to see. और अभी logistics शुरू करने के बाद, I think each and every person. So I don't think if a local wholesaler is also there, he can छोटे गांव से wholesaler में जो माल बन रहा है ना, वो बड़े retailer को भी firm की तरफ से माल दे सकता है. What I feel. I think a question should also is there for Sanjay Bhai Silver, Sanjay Bhai RV Agarwal also. You can unmute him. How will the silver guys benefit from this? Sanjay Bhai RV Agarwal. I think he's logged in from some other ID, sir. I can't find him. Okay, so I think there is a question. I think if Avinash wants to take it, will this be more of a specific meeting rooms when a retailer wants to see from a wholesaler, or it will be a digital space? Sayam, there is one important question which has come. Tell me. Is it compulsory to take part in all the shows, or they can take part in one show also? I think it is compulsory for everybody to take part in all the shows. All the 6 shows, which are basically happening on September, October, December, February, April, and July. So this will be a 1-year platform, and I think the expenditure which is being made and it has been divided in a way of 4.25 lakhs. This is in a way that it can be sufficing the expenditure which is made. So it is preferable for everybody to take part in all the 6 shows. Remember, but this cost will give you access for 365 days. That is most important. Yeah. तो अगर आप गिनोगे कि 365 डेज के लिए आपको 4 लाख या 4.5 लाख रुपया लग रहा है, तो you can calculate दिन में कितना लग रहा है. And 365 days you are there on the virtual, wherein you can do your private one-on-one at any given point of time. That's very important. 6 exhibitions, GJC will be doing it, and GJC will be calling the visitors to the virtual platform, guaranteed. But by the other days, it's virtual. Every day you can do your own business through that. Am I right? Yes. For 6 days, we are taking responsibility of getting more than 5 to, I will not say the exact figure, but above 3,000 to 5,000 top end retailers will be there in that platform. And for the 6 days, मतलब 36 days में 6 दिन पे होंगे. You can chat with those guys, you can talk with them. Hi, how are you बोल सकते हैं. उसके बाद उनको अपने platform पे लेकर आ सकते हैं. For the entire 365 days, the platform is open. एक बारी किसी को आदत पड़ जाती है Facebook पे जाने की, WhatsApp पे जाने की, हमारे प्लेटफॉर्म पे जाने की, तो सुबह रिटेलर आके खोलेगा, जो सामने खड़े हैं रेडी हैं, वो इमीडिएटली आके माल देख के वीडियो चैटिंग से और अपना ज्वेलरी बेच सकते हैं. And to that, the question has further been exaggerated by Mahendra Bhai. If I get enough customers, then what? I don't want. You should be very happy if you get enough customers in the first exhibition. You are not losing money. You are gaining a lot of money out of it.
if you do one show, you spend so much of money, and then still we will not be able to we still do the show. I think we should be very happy in the first show if you get enough customers. Try on to keep the clients intact with you. Avinash bhai, I think Chetan bhai Thadeshwar is also there. Any questions from his side? You can open Mitesh. You can unmute him if he's there. Chetan bhai is unmuted. नमस्ते सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं जीजेसी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज की जो नीड ऑफ द आवर ऐसे प्लेटफॉर्म की डेफिनेटली बहुत ज़रूरत थी। और जितने एग्जीबिशंस हम करते हैं बहुत खर्चीला होता है, और ये कोविड ने हमें सिखा दिया है कि डिजिटली काम कैसे करें। तो मैं जीजेसी का धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि बहुत चीज़ें मैंने सुनी, स्पेशली अशोक भाई ने बहुत अच्छी तरह समझाया है हमको, लेकिन फिर भी ये वीडियो कॉलिंग का कुछ मेरे मित्र जो इसके ऊपर है वो फिर भी जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। ये बहुत अच्छा है, हम इजीली लोगों तक पहुंच जाएंगे, ये कॉन्फिडेंशियल है, हमारी परमिशन से ही हमारी ज्वेलरी दिखेगी, ये सारी चीज़ें बहुत सही जा रही है। लेकिन फिर भी एक बार हम ये देख लेते हैं, काफ़ी रिजनेबल भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी महंगा है। हम जितना खर्चा एग्जीबिशंस पे करते हैं तो थोड़ा सा उस पर अगर ज़्यादा थोड़ा फोकस करके हमें फिर से बताएं कि एग्जैक्टली वो ज्वेलरी किस तरह दिखाएंगे। ज्वेलरी की साइजेस छोटी भी होती है, ज्वेलरी की जैसे मैं मंगलसूत्र में हूँ तो मंगलसूत्र में हाईएस्ट साइज 30 इंचेस लेंथ भी होती है, उसके अंदर से एटलीस्ट 16 इंच लेंथ का भी अगर दिखा सके, या छोटी सी अंगूठी कोई दिखाना चाहे तो किस तरह दिखा सके। अभी एक मैसेज आया था राजकोट से कि भाई एक छोटा ऑब्जेक्ट कोई खाली मशीन के बॉल्स ही बनाता है सीएनसी के, तो वो किस तरह वो उसके अंदर कर सकते हैं। तो जैसे लाइटिंग्स आपने 3 टाइप की दी है, कैमरेज उसके अंदर है, गुड स्टूडियो, लेकिन थोड़ा सा ये डेमो अगर ये प्रैक्टिकली अगर लोगों को मिल जाता, क्योंकि आज अगर लॉन्च कर रहे हैं हम, तो काफी बेटर होता। चेतन भाई, आपका प्रश्न बहुत फैंटास्टिक है। इफ यू डू साहेब, इट्स ओके, टुडे आज कुछ आई थिंक बड़ा तेजी से स्टॉर्म चल रहा है मुंबई में, और वातावरण इतना डेंजर हो गया है। हमने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयारी की थी, लेकिन इतना डिस्टर्बेंस है सिग्नल के अंदर कि कुछ भी चीज सही तरीके से चल नहीं रही है। हमारा 2-2 मिनट 3-3 मिनट में से यहाँ पर इंटरनेट ड्रॉप हो रहा है एकदम। तो हम दिखा ही नहीं पा रहे हैं रियल डेमोन्स्ट्रेशन जो हम दिखाना चाह रहे थे। तो हमने उसका एक रिकॉर्डिंग बनाया था। वो रिकॉर्डिंग जो था वो प्ले डायरेक्टली यूट्यूब में से प्ले करने की कोशिश की कि अगर वो लिंक अगर कोई उसका रिकॉर्डिंग भी देख ले तो आइडिया आ जाए। तो वो रिकॉर्डिंग है, तो चाहे तो अगर हम वापस आपको दिखा दें। और आप देखिए सर, 2-2 सेंट के हीरे लगे हैं, 2-2 सेंट के, वो किस तरह से दिखते हैं क्लियरिटी में आप देख सकते हैं आसानी से। आप वापस दिखाइए सर। संयम भाई, इन द मीन टाइम जो एक मिनट
चेतन भाई या इस तरह से आई डोंट नो आपको क्या क्लैरिटी दिखी। मेरे यहाँ तो क्लैरिटी बिल्कुल अच्छी नहीं दिखी है क्योंकि यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है। शायद वहाँ क्लैरिटी अगर दिखी हो तो काफी बेटर विजन मिला है। और अगर ये इंटरनेट स्पीड के भी या आज जो भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है फिर भी अगर ये इतना अच्छा दिख रहा है तो आई एम श्योर कि उसके बाद अगर होलसेलर्स और रिटेलर दोनों के पास एक अच्छा इंटरनेट मीडिया हो, अच्छा ब्रॉडबैंड हो या लीज लाइनें हो तो डेफिनेटली अपने को अच्छा क्वालिटी और भी बेटर मिलेगा। दूसरा जो स्टूडियो का प्लान है, स्टूडियो इज द गेम चेंजर। जो 3 लाइटिंग के साथ में जो स्टूडियो का प्लानिंग है, आप ज्वेलरी बाहर निकालिए और स्टूडियो के अंदर डालिए, आसमान और जमीन का फर्क पड़ जाता है। आप इंस्टेंट के न्यूयॉर्क के स्टोर का विंडो देखेंगे, वो लेवल का विंडो का लाइटिंग और चेतन भाई, स्टूडियो में यू कैन हैव मल्टीपल कैमराज इफ यू वांट, कि एक ट्राइपॉड पे रख के आपका लंबा वाला बड़ा वाला सेट दिखा सकते हैं और दूसरा हैंड हेल्ड में पास जाके ज्वेलरी का डिटेलिंग अगर कोई सिलेक्शन करता है तो आप दिखा पाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी वो आपके पास है। आपका क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूँ कि आपको पहले 2 एग्जीबिशन में सब कस्टमर मिल गए, लेकिन वो कस्टमर से तो आप ईयर राउंड बिजनेस करेंगे, तो ईयर राउंड बिजनेस के लिए भी ये 365 डेज वाला जो पैकेज है आपको यूज में आए। सर मेरा और एक कंसर्न था, मैं जैसे एक मेरे मेंबर्स की तरफ से लेना चाह रहा हूँ। जैसे काफी लोग है ना एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट पहले नहीं कर पाते थे क्योंकि लंबा खर्चा होता। अभी ये प्लेटफॉर्म पे काफी ऐसे छोटे छोटे होलसेलर्स है जो कि एक शो करके ट्राई करना चाहेंगे या 2 शो करके ट्राई करना चाहेंगे। हम लोग जो ऑलरेडी सेटल है, जो शोज करते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट काफी से न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये शो के अंदर जो 6 के शो कर ही नहीं पाएंगे। उनके पास ना तो उनका बैकअप है, ना उतना काम बना सकते हैं, कारीगर भी नहीं है। तो ऐसा कुछ ऑप्शंस अगर आप निकाल पाए कि किसी को 1 शो करना हो, 2 शो करना हो या 3 शो करना हो, तो अगर वो अच्छा रहेगा। Instead of bounding all 6 shows, I think if you have that provision, that will even encourage more people to join in that. I think it's a good suggestion. Let the committee sit and decide on this. Good suggestion, Mahendra bhai. Let us come back to you on this. Yeah, thank you, boss. Any other questions, or we should go for? I think doing the vote of thanks. संयम भाई, या सिल्वर का अपना पॉइंट रह गया था। संजय भाई है मेरे हिसाब से। संजय भाई अगर आप हैं तो नीलेश भाई के आईडी पे हैं। नीलेश भाई, संजय भाई, यू कैन बोथ टेक इट टुगेदर ये क्वेश्चन ऑफ सिल्वर। नीलेश भाई कैन अनम्यूट हिम। नितेश प्लीज अनम्यूट देम। सिल्वर में आपको क्या लगता है नितेश? अविनाश भाई, कैन यू अनम्यूट नीलेश भाई? ओके। हाँ, हेलो सर इज अनम्यूटेड। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस। सिल्वर में मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर सिल्वर का जो है ना, सिल्वर वालों को बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा, क्योंकि जो सिल्वर के जो आइटम्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उसकी लॉजिस्टिक्स पॉसिबल नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और इसके अंदर वर्चुअल शो के माध्यम से हम लोग अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपनी सारी इन्वेंट्री जो अपने बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं वो हम सामने वाले को दिखा सकते हैं। और इसके अंदर हमको कहीं भी माल ले जाने की जरूरत नहीं है, उससे माल डैमेज नहीं होगा। और जो लॉजिस्टिक्स का जो बड़ा खर्चा है, जो सबसे बड़ा हम लोग का खर्चा होता है वो लॉजिस्टिक्स का होता है, वो हमारा बचेगा। तो मैंने तो और भी अन्य भी चांदी वालों से बात किया, और लोग काफी इसको लेकर उत्साहित है, काफी एक्साइटेड है इसके डेमो के बारे में, इसके डिटेल्स के बारे में वो लोग समझना चाहते हैं। और उन लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सिल्वर के लिए आप एक्सक्लूसिवली डेमो रखिए, जिसमें सिल्वर आइटम्स आप कैसे दिखाने वाले हैं उसका आप डेमो कीजिए। हाँ, तो उसमें क्या वो जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स है वो उसमें नहीं होगा, तो काफी अच्छा इसके ऊपर। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो हेजल होता है वो मूवमेंट ऑफ गुड्स का होता है,
और सिल्वर में, और वो इसमें नहीं है। तो ये सबसे सिल्वर वालों के लिए सबसे ज्यादा एडवांटेजेस का ये प्लेटफॉर्म है। द मोस्ट एडवांटेजेस पर्सन विल बी सिल्वर पर्सन। थैंक यू। अविनाश जी, एनी क्वेश्चंस अदर? या एक क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डू यू हैव अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ हाउ मेनी एग्जिबिटर्स विल बी देयर? The thing is that at this moment we already have 60 people who have confirmed. मतलब जिन्होंने WhatsApp के अंदर मितेश को WhatsApp. There is no upper limit of registering visitors. We can have 1,000 visitors also. We can have 1,000 participants also. There is no limit. And have we thought about any limit at the moment? No, I think we are just beginning today. कहाँ से लिमिट सेट कर सकते हैं अभी आप? अभी तो शुरुआत है. If we will start with a few hundred people, probably we may land up to about 1,000 visitors at the end of the day on the highest side, according to me. 1,000 exhibitors. Right. Okay. So I think most of the questions have been answered. Right now, I thank my GJ S virtual team. Survoji is here, but can you see if Survoji or any person from our COA, Mitesh, wants to say anything? You can ask them to say a few words. I can't find him, sir. If he has joined it from the same name. Mohanlal ji is there. Mohanlal ji is here. Mohanlal ji is there. I am unmuting him. Mohanlal ji. Hello. Yes. Yeah, Mohanlal. He's mute again, I think. No, he's unmute, sir. You can check it. He's him to unmute. Yeah, please unmute him. He has to unmute from there. His end, sir. मोहनलाल जी, आपको खुद को अनम्यूट करना होगा. हाँ. मोहनलाल जी, आप रिटेलर होलसेलर दोनों हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज दीजिएगा ना. Again, I think he's muted himself. सैम भाई, विजय चौड़िया जी है, तो उनको अनम्यूट कर रहा हूँ. या प्लीज अनम्यूट विजय चौड़िया. विजय जी. हेलो. विजय जी ने आज सुबह 20 स्टॉल लिखाए, हम 20 कंफर्मेशन दिए उनके ग्रुप के. सो आई थिंक उनको अनम्यूट करो इमीडिएटली. या उन्होंने आपके अभी कोई कंफर्मेशन आया है क्या? हेलो. हाँ विजय जी बोलिए सर. नहीं सर, आई थिंक इट इज अ ब्रिलियंट आइडिया और दिस इज द नीड ऑफ आवर. मेरे हिसाब से एक एग्जिबिटर्स का अपन रखेंगे तो इफ आई अंडरस्टैंड राइट, तो कैप अगर रहेगा ना तो सर्वर कैन हैंडल बेटर. मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिटर्स इज फाइन. थोड़ा सा एग्जिबिटर्स का अगर अपन सोचते हैं, और रिटेलर्स तो जितने आएंगे आई थिंक वो बेस्ट है, और ये तो आगे होने वाला ही है. दिस इज द नीड ऑफ आवर, और थैंक्स टू जीजेसी टीम फॉर टेकिंग इट अहेड. आई थिंक बहुत राइट टाइमली आप लोगों ने सबने प्लान करके इसको स्टार्ट कर दिया. एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प द होल ट्रेड एज ऑफ नाउ, क्योंकि आई डोंट सी इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर वेरी सून की ट्रैवलिंग पॉसिबल होगी, तो दिस विल हेल्प. थैंक यू होल जीजेसी टीम. Thank you, Vijay ji. Thank you so much. Vijay ji. I think Mohanlal ji is here. After we take Mohanlal ji, then we can have the thank you. ये बहुत अच्छा जो जनरल एग्जीबिशन होते हैं उससे भी 1000 टाइम्स बेटर है इसके पॉइंट्स. एक ये सब जो प्रोजेक्शन रूम है जो आप दे रहे हैं, उसका एक बार डेमो लोगों को बहुत फायदा होगा, और हमारे लायक कोई हैदराबाद से भी बहुत लोग उत्सुक है ज्वाइन होने में. वेरी गुड सर, ऑल द बेस्ट सर. Thank you, sir. Thank you. I think I would like to thank my full GJC COAs, my chairman, my vision of my. Chetan bhai wants to speak something, I think. Chetan bhai.
जी सॉरी सैम जी, मैं इतना कहना चाहता था कि ये इतना फैंटास्टिकली प्लान किया हुआ है सारी चीजों को। एक चीज का एक चैलेंज मेरे ख्याल से उसके अंदर रहेगा, क्योंकि आज अपने बोले B2B के अंदर डिजिटल काफी सक्सेस हो गया है, लेकिन फिर भी रिटेलर्स को डिजिटली टर्न करना, उसके लिए मेरे ख्याल से जीजेसी में एक ऐसी कमेटी या ऐसी टीम होनी चाहिए जो कैसे भी करके अगर इसमें अगर टर्न हो जाए। और देखिए होलसेलर्स तो आसानी से जुड़ जाएंगे, इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म, लोग बाहर जा नहीं सकते, एग्जीबिशंस भी काफी मुश्किल है, तो हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिल गया है। लेकिन अगर रिटेलर्स अगर ये इसके अंदर समझो कि अपने को अगर सहभागी होते हैं इसमें, अगर इस तरह से अगर जाते हैं, तो ये एक मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा टास्क है और ये आसानी से आप कर सकते हो। तो अगर ये सक्सेस हो गया तो मैं समझता हूँ कि ये सर्वर को फ्लिपकार्ट के लेवल का सर्वर अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि उतने लेवल के होलसेलर रहेंगे और इतने रिटेलर एक साथ में जोड़ेंगे। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ चेतन भाई, ये आपका जो आइडिया है ना वो रियली जेन्युइनली परफेक्ट है कि इसमें रिटेलर का भी माइंडसेट चेंज होना चाहिए। और आप जो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं ना, फ्लिपकार्ट से भी बड़ा है प्लेटफॉर्म। सो आप इसको अंडर एस्टिमेट करिए ही मत, इट इज अनबिलीवेबल। ये प्लेटफॉर्म कोलैप्स हो जाए तभी हो सकता है, वर्ल्ड में कोई इंटरनेट कोलैप्स हो जाए तब हो सकता है। So it is we have made sure that we have got the best, number one, and it is totally cloud based. This is not a apna ambassador fiat where you will have problems. This is really on the Mercedes-Benz level of vehicles. This software of that category of product, and used and tested by the topmost countries of the world. Chetan bhai, on your another point of retailers engagement with the platform, आपने ये बोला कि आप लोग ये कर सकते हो, ये अपन लोग कर सकते हैं. We are part of the GJC team, and we together can definitely change the mindset of the customer who is our retailers. Today, when we are able to sell the goods today, neither you nor me is going anywhere, but we are selling. We are selling through WhatsApp or we are selling through virtual, whatever it is. So we all together as the exhibitors and the wholesalers lobby will make sure the retailers will join this platform in a big way. Secret the photo. I think from tomorrow onwards, just for your knowledge. Perfectly said. Tomorrow onwards, just for your knowledge, 100 retailers, 50 retailers को लेके Mitesh and the entire team with 2-3 COAs and 2-3 committee members, ये मुहिम ऑलरेडी चालू हो जाएगी. हर रिटेलर को ऑलरेडी इसके ऊपर एक हो जाएगा. और 15 अगस्त के बाद हमारा जो GJS का ऑफिस है 6th फ्लोर पे जवेरी बाजार में, उसके ऊपर ये पोर्टल मिलेगा आपको, पूरा स्टूडियो दिखेगा. 12 o'clock and 4 o'clock 2 स्लॉट्स में एक ज्वेलर आकर डेमो देख सकता है. So from 15th August to 25th August, live demo GJS office जवेरी बाजार में दिखेगा for 10 days, 2 timings, 12 PM and 4 PM. So जितने भी doubts हो कुछ हो, you can get it cleared immediately. So this is the way it is going to look. This is the photo of the studio, so you can get an idea how it looks. It is open from all sides. You can put your hand anywhere. You can operate from anywhere. From the top also it is open. From the side also it is open. From everywhere it is open. The lighting is from the top and from the side pillars. So you cannot imagine the glitter and the glamour of the entire display. It's just a sample which is being made. This is the sample unit. Yeah, this is looking excellent. There will be cameras also inside and one tripod also, which will and three color lighting. Excellently done. Great. So I think it is done. Avik bhai is writing that there is pollution on some days. So we will look into the days of any festival, and we will 1 or 2 days up and down we can check into that. Bhavik bhai, not a problem.
Any other questions from your side? Do you want to unmute? 16 to 23 is the Paryushan. So we'll check into that. I think I would like to thank everybody for participating in this. Ashok bhai, it was an excellent presentation from your side. Nitin bhai excellently spoke. Bachra ji spoke. Vinod ji and Harish bhai had a meeting, so they could not be here. Even they had to talk about a lot of things about this show positivity. I think all the questions which have to be answered, there will be an IT team जो जवेरी बाजार के ऑफिस में बैठी होगी. 20 कॉलर्स होंगे जो ऑटोमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी चीज आएगी, इमीडिएटली रिजॉल्व होगी किसी के पास आए. 15 to 25th August तक you will have your GJ's office के अंदर demo live. You can go into the office and have a look. So you can have your appointments fixed with Mitesh. Anybody wants to have their booking done, tomorrow the refund mail will be going. किसी को कुछ भी करना हो, किसी को अपना इंटरचेंज करना हो, कुछ भी करना हो, nothing is a compulsion from the side of GJS. Anybody needs the way, we are very flexible to do it. And thank you to Sahil bhai, Nilesh bhai, Sanjay bhai, Sunny bhai, Dolakia ji bhi hai. I think we haven't heard from him. Sunny bhai is our very active member from the Diamond side in GJC. Representative or there is a mobile app from Calcutta, so he's also here. Avinash ji is also there is a mobile app available for every. Dedicate this to also I forgot to vision of our vice chairman Shri Shankar Sen ji, जिनके vision, जिनकी power, जिनके mind की power उसके अंदर कर सकते हैं. So I think all this stuff will be done, and I thank everybody again for this. The entire team is proactively working in this of GJS, and I think we're looking forward everybody to come on board in this platform. Thank you from this side at GJC and GJS. Thank you and all the best. Have a wonderful day. Bye-bye.